Set goals, make plan, get to work, stick to it and reach your goal. With these words, myself Anu welcomes you all in my channel, and we are discussing about a topic that is known to be law of demand, right? So how you are doing all? And demand के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, that demand is a very interesting and important topic of economics. When you are talking about economics, you must know about the demand. As you all know, we have to concern with the consumer and the producer and the many another agents that will make economic activities possible. So when I am talking about demand, I am talking about the consumer behavior, right? So as you know, who is a consumer? Consumer is a person who buys something. So when I am talking about demand, I am talking about buyer's choice. I am talking about buyer's choice. And today in this video, I am telling you about the law of demand. But before that, let's have a look about the demand. What demand is all about. होता क्या है demand? इसके बारे में थोड़ी सी information हो जाए. So as you know, demand अगर मैं कहूँ, आप वर्ड सुनते ही माइंड में क्या प्रोजेक्शन आती है, लाइक ओके आई वांट टू बाय समथिंग, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंड यू थिंक दिस इज योर डिमांड. बट स्टूडेंट्स, होल्ड. In economics, we are not merely concerned with the desire to buy something as your demand. To make a demand in economics, we must have, no doubt, desire must be there, but we must have income to buy that particular thing. अगर आपके पास इनकम ही नहीं है, तब आप कोई भी प्रोडक्ट कैसे खरीद सकते हैं? और जब तक आप किसी शॉप के पास जाकर, लाइक शॉप तो चलो मैंने बोला आपको एग्जाम्पल, जब तक आप किसी भी सेलर को ये नहीं बताएंगे दैट यू वुड लाइक टू बाय समथिंग, till then your demand will not be made. So demand होने के लिए ज़रूरी है the two most important thing, one is the desire to buy the thing and then ability to pay for that thing. Ability to pay, in other simple words, I can say I must have income to buy that thing. अगर इनकम ही नहीं है then मेरी डिज़ायर mere डिज़ायर ही रह जाएगी, वो मेरी डिमांड कभी भी नहीं बन पाएगी. So always keep this thing in mind. We can say what is demand all about. Before that, we must know the definition of demand. So what is demand? The demand is the quantity. The demand is a quantity. What quantity? Of the commodity which an individual household. When I am talking about the demand, I am talking about an individual household. Who is an individual household? You, me, all other people individually. When they make any demand, they are known to be the individual household, right? So when I am talking about individual household, the people who are willing to purchase per unit of time, always consider it in your mind. जब भी हम डिमांड के बारे में बात करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर और एक पर्टिकुलर प्राइस पर बात कर रहे होते हैं, बिकॉज एज द टाइम चेंजेस, एज द प्राइस चेंजेस, आवर डिमांड विल also changes. So always in your definition about demand, you have to take this thing in care that you have to write like at a point of time, at a particular price as well. Okay, then it will make our demand. ये हमारी डिमांड हो जाती है. और किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड होने के लिए, as we have already discussed, there are the three ingredients of demand that must be there. One is the desire to acquire that thing. You want to buy something ना. अगर आप desirous ही नहीं हो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वो आपकी डिमांड कैसे बन सकती है, right? So it is important to have desire to acquire anything. Then you must have willingness to pay for it. आपको ठीक है चाहिए मुझे, बट ना पैसे नहीं खर्च कर सकता मैं, तो फिर वो आपकी डिमांड कैसे बनेगी? इसीलिए ज़रूरी है there must be willingness to pay for it. If you are willing to pay for it, then it will be your demand, because after that you are ready to demand anything. And the third most मेजर थिंग और मोस्ट मेजर इंग्रेडिएंट जैसे कहते हैं ना,
कोई भी अगर आप आइटम प्रिपेयर कर रहे होते हो तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है वही यहाँ पर डिमांड के लिए एबिलिटी टू पे रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, द कैपेबिलिटी टू बाय समथिंग. इफ यू डोंट हैव एनफ इनकम, हाउ कैन योर डिमांड विल बी मेड. सो द थ्री थिंग्स comes together to make our demand. In the absence of any a single thing, अगर एक भी ingredient missing है, आपकी डिश स्वीट नहीं बनने वाली है और इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं बनने वाली है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव योर डिमांड. हमें डिमांड के बारे में ही बात करनी है, और डिमांड के बारे में जब हम बात करेंगे, ऑल द थ्री थिंग्स मस्ट बी देयर होगी, तभी वो हमारी डिमांड को मेक कर पाएगी. सो आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट व्हाट इज़ डिमांड ऑल अबाउट. मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसीलिए दिया है बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग यू मस्ट बी नोन टू द बेसिक ऑफ द टर्म. आपको पता ज़रूर होना चाहिए होता क्या है डिमांड, सो इट मेक्स क्लियर टू यू. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू मेक क्लियर टू यू. अभी भी मैंने जब आपको बोला कि आपको डिज़ायरस होने से डिमांड नहीं बनती है, तो ये चीज़ें क्या है, व्हाट आर दीज कंसेप्ट्स. सो हियर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द थ्री थिंग्स. व्हेन आई एम सेइंग आई नीड समथिंग, when I am saying I need something, that means I need something. Like I am feeling hungry, that means I need food. I need food. मुझे खाना चाहिए अपनी भूख के लिए. So if I am hungry, that is my need. Whatever comes to me, I am ready to consume at that time because I have to fulfill my need, right? But ये need want कब बन जाती है, when I have choices. I have to make a particular choice among different options. Like, okay, I am feeling hungry and I can eat. मुझे क्या चाहिए खाने के लिए, वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, that will be my want. Like, if I am asking for biryani, paratha, burger or anything like that, then the particular need fulfilling thing is become my want. Like if I said I want burger, so जो नीड थी मेरी, जो कोई भी फूड फुलफिल कर सकता था, अब मेरी वांट को फुलफिल करने के लिए आई नीड बर्गर, मुझे बर्गर ही चाहिए. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द नीड एंड द वांट. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डिमांड, देन देयर इज़ अ डिसीजन तो मेरा यहीं पर हो गया था वांट के टाइम पर, लेकिन इट मस्ट बी बैक विद द कैपेसिटी टू बाय. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ दैट कोई भी प्रोडक्ट तब तक डिमांड क्रिएट नहीं करेगा जब तक आपके पास इनकम नहीं होगी, जब तक आपके पास सफिशेंट बाइंग पावर नहीं होगी. दैट कैन बी नोन एज एबिलिटी to buy something or capacity to buy a thing. And when the two things comes together, that makes our demand. वो हमारी क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है. So students, I think it is clear to you डिमांड होता क्या है और किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कब तक डिमांड नहीं बन पाती है. Now come to the main point, that is about the law of demand, and let's start about the law of demand. So as you know what is law of demand. Law of demand होता क्या है, this is the basic, this is the fundamental law of economics. जब आप कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करते हो तो सबसे पहले आपसे जो पूछा जाता है that is about demand. एंड जब आप डिमांड के बारे में बात करते हो, डिमांड के बिहेवियर के बारे में बात करते हो, you must know about the law of demand. Okay. So here is the definition of demand given, law of demand given by Alfred Marshall. As you know, Alfred Marshall is the father of modern economics. Marshallian economics ही पढ़ रहे होते हैं जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. सो ऑलवेज कीप दैट थिंग इन माइंड. हम यहाँ पर डेफिनेशन भी एल्फ्रेड मार्शल की ही ले रहे हैं, who was a very famous economist and known as the फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज. तो प्लीज़ ध्यान रखें इस बात के बारे में आप. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इट मस्ट बी क्लियर टू यू. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ इन इकोनॉमिक्स, वी हैव टू टेक अ फेज विद दैट इज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल.
other things being equal. In many books you can find the word ceteris paribus. Ceteris paribus, the same thing will be there, the other things being equal, other things being same. This is the same meaning of that ceteris paribus. So what will happen, other things being equal? The demand is higher with the fall in price. In your normal life, in your routine life, you must know that whenever a good become more expensive, you are ready to buy less of that commodity. Am I right? सही है ये बात? कोई भी प्रोडक्ट होता है जो आप मार्केट में खरीदने जाते हैं और अगर उसके प्राइसेस कम हो गए हैं, यू कैन बाय मोर ऑफ इट, आप उसको ज़्यादा खरीदना प्रेफर करेंगे. और अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज हो गए हैं, देन यू विल बाय लेस ऑफ दैट थिंग, आप उसकी क्वांटिटी कम खरीदना पसंद करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड. दैट इज as simple as that. बहुत सिंपल सी थिंग है. there is a presentation about the law of demand. when the price goes up, जब भी कभी prices up जा रहे होते हैं, prices goes up जा रहे हैं, then the quantity demanded goes down. जो quantity demanded रहेगी वो क्या हो जाती है, हमारी डाउन हो जाती है यहाँ पर, और goes down. and as the prices goes down, और जब prices down होते हैं, we would like to buy more of that thing. that means the quantity demanded goes up. quantity demanded आपकी पहले से ज़्यादा हो जाती है. so the noticeable thing that law of demand tells us there is a inverse relationship between the price and quantity. price and quantity has inverse relationship. higher the prices, less will be the demand. less the prices, higher will be the quantity demanded of any particular thing. right? so this is about the law of demand. I think सभी को समझ आ गया होगा. याद भी रखना है आपको that there is a inverse relationship between the price and quantity demanded. I am not using the word demand because mere demand is not about the thing. We are discussing about the quantity demanded. ठीक है? so please ध्यान रखें इस बात के बारे में. price and quantity demanded के बारे में यहाँ पर हमने अभी बात की है. अब जब भी कभी किसी लॉ के बारे में बात की जाती है, देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, देन व्हाट इज दीज अदर थिंग्स. ये है क्या जो हमने कांस्टेंट मान लिया है, तो वो क्या कहलाती हैं? दीज आर द अजम्पशंस ऑफ द लॉ. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट अजम्पशंस ऑफ द लॉ. अब क्या अजम्पशंस होती है? अजम्पशंस पता होगा आप सभी को क्या होता है. दीज आर द थिंग्स दैट वी लेट. आप कभी मैथ्स किया है आपने, हम कभी भी कोई चीज़ प्रूव कर रहे होते हैं, कोई थ्योरम प्रूव कर रहे होते हैं, वी हैव टू लेट सम थिंग्स, है ना. कुछ चीज़ें हम लेट करके चलते हैं. एग्जैक्टली विद द सेम हमें यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करते हुए कुछ चीज़ों को कांस्टेंट लेके चलना है. दीज आर द अजम्पशंस ऑफ द लॉ. क्या अजम्पशंस हैं यहाँ पर? फर्स्ट थिंग, देयर इज़ नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस. कंज्यूमर प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको डिमांड के बारे में इंफॉर्मेशन इसीलिए दिया था सो दैट यू नो अबाउट द चॉइस. ठीक है, तो मेरी जो चॉइस होती है वो किस पर डिपेंड करती है? मेरी प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है. और ये हम मानकर चलते हैं कि जिस प्रोडक्ट के लिए मेरी प्रेफरेंस है दैट विल रिमेन द सेम. ऐसा नहीं है कि फॉर द वन टाइम आई एम रेडी टू बाय अ थिंग और फॉर द अनदर टाइम आई एम नॉट लाइक दैट थिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड तो फेल हो जाएगा. सो इट मस्ट बी कंसिडर्ड दैट there is no change in consumer preference. Then there is no change in fashion. फैशन चेंज होने के साथ में हमारी डिमांड भी चेंज हो जाती है. बट जब हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करते हैं, हम ये मान कर चलते हैं दैट देयर इज़ नो चेंज इन द फैशन ऑफ द प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट जिस टाइम फैशन में है, हम उसी टाइम के लिए उस लॉ ऑफ डिमांड को वहाँ अप्लाई कर सकते हैं. देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स देयर आर मैनी थिंग्स विच आर बॉट टुगेदर और they can affect the demand of the other thing as well. तो जब भी कभी हम टू प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं which are related directly और indirectly with each other,
प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब रहेगा लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टू गुड्स विच कैन बी बॉट टुगेदर, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग विच आर सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर, राइट। तो दोनों ही केसेस में जो प्राइजेस होते हैं अनदर गुड्स के, वो इफ़ेक्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट की डिमांड को, और हम लॉ ऑफ डिमांड को जब मेंशन करते हैं, दीज थिंग्स द प्राइजेस ऑफ द अदर थिंग्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट, वो हमें कांस्टेंट लेके चलना है। एंड देन द लास्ट वन इज नो एक्सेप्शंस ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज। फ्यूचर प्राइजेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपको मैं अभी बता दूं कि कल पेट्रोल के प्राइसेस डाउन होने वाले हैं, तो क्या आज की आपकी डिमांड पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ जाएगा? चाहे कितने भी कम क्यों ना हो आज पेट्रोल के प्राइसेस, यू विल नेवर लाइक टू बाय पेट्रोल फॉर टुडे। आप आज क्यों खरीदने लगे अगर आपको पता लग जाए फ्यूचर में प्राइसेस चेंज होने वाले हैं। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करते हुए हम हमेशा फ्यूचर प्राइसेस को कांस्टेंट मान लेते हैं, राइट। सो दीज आर द assumptions of the law of demand. Whenever I am talking about law of demand, all these things and some things like that would remain constant. ऐसा हम मान के चलते हैं, ऐसा हमने लॉ की स्टेटमेंट में भी लिखा था। सो प्लीज़ इस बात को आप ध्यान रखें। आफ्टर दैट जब भी हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, सो लाइक जैसे कहते हैं ना, कोई भी डिश विदाउट सॉल्ट पूरी नहीं है, इसी तरह इकोनॉमिक्स में विदाउट हैविंग टेबल एंड डायग्राम किसी भी कंसेप्ट को कंप्लीट नहीं माना जाता है, एटलीस्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। सो ट्राई टू मेक योर थिंग्स, ट्राई टू मेक योर स्टेटमेंट्स provable with the help of the table and the diagram, and that's what I am going to do, that with the table and diagram I am explaining the law of demand to you. So what is table? देखिए आप यहाँ पर there is a table which shows the prices and the quantity demanded of that particular thing. And as you know, देखिए आप, if the price is ₹1, one more thing you can कीप इट इन योर माइंड। जब आप बात कर रहे होते हैं टेबल के बारे में, तो इसके बारे में ये ध्यान रखें ज़रूर से दैट इफ़ यू विल मेंशन द यूनिट्स इट बिकम मोर अप्रोप्रिएट फॉर यू, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सो प्राइजेज इज गिवन इन रुपीज़ एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज इन यूनिट्स, ये आपके यूनिट्स में गिवन है। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड already that there is a inverse relationship between the price and quantity demanded. So you can see जैसे जैसे prices 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 rupees पर increase होते जा रहे हैं, likewise the quantity demanded tends to fall. At ₹1 we are demanding 10 units, but at ₹2 we are demanding only 8 units. You can see there, as there is a increase in the price, there is a fall in the quantity demanded. This is about the law of demand. So you have to make this table to make a support to your law of demand. So 1, 2, 3, 4, 5, as the prices are rising, the quantity demanded 10, 8, 6, 4, 2 is falling as well. This is called law of demand. This is the tabular presentation of our law of demand. Then क्या करना है हमें? अब इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। एज यू नो कि टेबल के साथ डायग्राम भी होना चाहिए। सो हेयर इज द डायग्राम एंड यू कैन सी दैट डिमांड कर्व। दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें शो करनी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या लेने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जिसका इफेक्ट पड़ता है वो हम वाई एक्सिस पर लेते हैं, दैट इज द प्राइजेस, राइट। और जिस पर इफेक्ट पड़ता है दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, वो हम यहाँ एक्स एक्सिस पर शो कर रहे होते हैं। दिस इज द ओरिजिन एंड हेयर आर द डिफरेंट क्वांटिटीज दैट यू कैन बाय एट डिफरेंट प्राइजेस. And you all know how to draw the diagram, so I am not here to make the diagram for you, but I am just explaining it to you, right? So as you can see, at ₹1 there is the demand of 10 units. At ₹1 there is a demand of 10 units. We get a point
showing the inverse relationship between the price and quantity demanded. And if the prices from rupee 1 will increase to rupee 5, what will happen? Yes, the quantity demanded will fall to 2 units. जो अभी हमारा 10 यूनिट्स था, अब वो फॉल होकर क्या हो गया है? 2 यूनिट्स हो गया है. देखिए इन्वर्स रिलेशनशिप कितना क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइजेस अप होते जा रहे हैं, प्राइजेस आर गोइंग हायर, द क्वांटिटी डिमांडेड इज मूविंग लोअर, राइट? एंड लेट्स मेक अ कर्व. This is our demand curve, and as you can see, because of this law of demand, it is always downward sloping. याद रखें, why the demand curve slopes downwards? Because of this application of law of demand. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड के लिए, लॉ ऑफ डिमांड को समझाने के लिए, दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट नो कि जब भी कभी हम इनवर्स रिलेशनशिप शो करते हैं किन्हीं भी दो थिंग्स के बीच में, देन द कर्व विल बी ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. दैट्स व्हाई आवर डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ये तो हमें क्लियर हो गया. अब ज़रा रीजंस जान लें क्यों ऐसा होता है कि जब भी कभी प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो डिमांड रिड्यूस क्यों हो जाती है, डिमांड में फॉल क्यों हो जाता है. एक तो बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा ना आपको कि ठीक है यार प्राइसेस बढ़ गए हैं तो लोग कम ही खरीदेंगे, बट व्हाई? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग, और वो रीज़न फाइंड आउट करना ही हमारा यहाँ पर काम है. तो हम जानते हैं इसके बारे में कि क्यों यहाँ पर जो कर्व्स होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. वाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेक केयर, बहुत ध्यान से पढ़ें इसको, और मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला कंसेप्ट है ये. सो वाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है. वाई द लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल, क्यों होता है लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल? क्या रीज़न है कि जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं हम उस प्रोडक्ट को कम खरीदना शुरू कर देते हैं, या प्राइसेस कम होने पर हम उस प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं. सो हियर आर द रीजंस. द फर्स्ट वन इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज यू ऑल नो, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? फॉलिंग, राइट? और यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? द पावर विच विल सेटिस्फाई आवर नीड. कोई भी प्रोडक्ट हम क्यों कंज्यूम करते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज उससे हमें कुछ यूटिलिटी मिलती है, राइट? और उस यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए पेमेंट करना पसंद करते हैं. और बिकॉज एक ही प्रोडक्ट अगर हम बार बार यूज़ करते हैं, उस प्रोडक्ट की सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन डिमिनिश होती जाती है. देखिए यहाँ पर द यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट goes on diminishing to a consumer. जैसे जैसे आप ज़्यादा कोई कॉमोडिटी यूज़ करते हो ना, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है. लेट अस कंसीडर अ बर्गर लेके चलते हैं. फर्स्ट बर्गर खाने से बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा यार, मतलब मस्त फीलिंग अच्छे वाली आ रही है, ठीक है ना. इसके लिए अगर मुझे 90 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, नॉट अ बिग इशू, आई कैन पे फॉर इट, बिकॉज वो मुझे 90 रुपीज़ की इक्विवेलेंट सेटिस्फेक्शन दे रहा है. लेकिन इफ़ एट द सेम टाइम आई यूज़ द अनदर बर्गर, द सेम क्वालिटी, द सेम वेराइटी एट द सेम प्राइसेस, आई वुड नॉट लाइक टू बाय दैट थिंग. अगर मैं रैशनल कंज्यूमर हूँ, अगर मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज नहीं हुआ है, और अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है, मैं कभी भी उस प्रोडक्ट को सेम प्राइसेस पर बाय करना पसंद नहीं करूँगी. दैट्स वाई वी आर लुकिंग फॉर द कॉम्बोज, है ना. हम कॉम्बोज देखते हैं ना, कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि लाइक ठीक है, 1 थिंग एट दिस रुपीज़, अगर सेम थिंग आपको 2 मिल रही है तो आपको कुछ कंसेशंस मिल रहे होते हैं ना उस पर. वो कंसेशंस लॉ ऑफ डिमांड के रीज़न से ही मिल रहे होते हैं.
हमें लगता है कि लाइक शॉपकीपर ने तो आसानी कर दिया, बट नॉट एट ऑल। उसे पता है कि इकोनॉमिक्स यहाँ पर अप्लाई होती है। कोई भी कंज्यूमर सेम प्राइजेस के साथ में कम यूटिलिटी को बाय करना प्रेफर नहीं करेगा। इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी द पीपल आर रेडी टू बाय मोर एट लेसर प्राइजेस ओनली। सेम प्राइजेस पर ज़्यादा क्वांटिटी बाय मोस्टली जो कंज्यूमर्स होते हैं नहीं करते हैं, वो ज़्यादा तभी बाय करेंगे जब उन्हें कम प्राइजेस पर मिलेगा, बिकॉज उन्हें कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। एंड कम सेटिस्फेक्शन मिलने का मतलब है दे वुड लाइक टू पे लेस फॉर इट। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न दैट व्हाई द डिमांड कर्व अप्लाइज, why the law of demand applies or why the demand curve slopes downwards. After that, this is not the mere reason, we have many another reason. The second one is income effect. Income, सभी को पता है इनकम क्या होता है, लेकिन जब हम इनकम के बारे में बात करते हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी इनकम, मनी इनकम के बारे में बात कर रहे होते हैं, बिकॉज वी आर कंसर्निंग अवर इनकम इन मॉनेटरी टर्म्स, मनी के टर्म्स में बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं इनकम इफेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज़ अबाउट द रियल इनकम। ये रियल इनकम क्या होता है भाई? एनीबडी नोज व्हाट इज़ रियल इनकम ऑल अबाउट? रियल इनकम इज़ योर एबिलिटी टू बाय द थिंग विथ योर मॉनेटरी इनकम। अपनी मनी इनकम में आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हो, ये आपकी रियल इनकम होती है। ठीक है, तो जब हम रियल इनकम के बारे में बात करते हैं, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर लेट अस से कोई प्रोडक्ट एक्स है और उसके प्राइजेस डाउन हो गए। पहले प्रोडक्ट के प्राइजेस जो थे ₹10 थे, नाउ दे हैव शिफ्टेड टू ₹5। ठीक है, आया समझ? अब ₹10 जब प्राइजेस थे, तब कोई भी पर्सन उस प्रोडक्ट की 10 यूनिट से बाय कर रहा था। सो जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो पहले एट ₹10 इट इज़ 10 यूनिट्स। अब आप सोच के देखिए, पहले 10 यूनिट्स पर 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मुझे कितने रुपीज़ स्पेंड करनी पड़ती थी? दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ टू बी स्पेंड। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेटर वे में लिख सकते हैं, प्राइजेज ऑफ एक्स एंड द क्वांटिटी ऑफ एक्स दैट दे आर लाइक टू बाय, दैट इज एट ₹10 दे आर लाइक टू बाय 10 यूनिट्स एंड दैट मीन्स दे आर स्पेंडिंग ₹100 फॉर इट। You have to spend 100 rupees of your income, of your monetary income on that particular 10 units. अब चेंज क्या हुआ? प्रोडक्ट के प्राइजेस फॉल होकर 5 रुपीज़ हो गए। ठीक है, और अगर मैं सेम डिमांड ही यहाँ पर ले रही हूँ, देन व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली आई कैन बाय द सेम यूनिट। अगर मैं 10 यूनिट्स ही बाय करती हूँ, आई कैन बाय विथ ओनली ₹50। मैं केवल 50 रुपीज़ में ही उसे बाय कर पाऊँगी। देन रिमेनिंग 50 रुपीज़ इज़ द इंक्रीज इन माई इनकम। मेरी तो इनकम ही बढ़ गई यार। पहले मुझे जिस चीज़ के लिए 100 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ते थे, अब मुझे उसी के लिए 50 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ रहे हैं। सो अगर मैं 50 रुपीज़ स्पेंड कर रही हूँ, दैट देयर इज़ अ राइज इन माई रियल इनकम। सो दैट मीन्स ₹50 राइज इन माई रियल इनकम। और जब मेरे पास इनकम और है, 50 रुपीज़ और हैं, तो उन 50 रुपीज़ को अगर मैं स्पेंड करूं इन्हीं प्रोडक्ट्स को ख़रीदने में, आई कैन बाय 20 यूनिट्स रादर देन 10 यूनिट्स। मैं 10 से ज़्यादा 20 यूनिट्स तक बाय कर सकती हूँ। दैट मीन्स विद द फॉल इन द प्राइस आई कैन बाय मोर ऑफ दैट क्वांटिटी। जो प्राइजेस 10 यूनिट्स थे, नाउ आई कैन शिफ्ट टू 20 यूनिट्स एज वेल। प्राइजेस फॉल हो गए ₹10 से ₹5। आपकी डिमांड जो है वो 10 यूनिट्स से राइज होकर 20 यूनिट्स हो गई है, राइट? सो दिस इज अबाउट द इनकम इफेक्ट, and because of this income effect you can always buy more of that commodity। आप ज़्यादा बाय कर सकते हैं, और यही रीज़न है कि आपका लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर एप्लीकेबल हो पा रहा होता है। So students, this is the second reason that tells us why the law of demand is applicable to us. Now the next one,
Now the third one is our substitution effect. When I am talking about the substitution effect, I am discussing about the substitute. Substitute, what we mean by substitute, you all know. क्या होता है substitute? Substitute का मतलब होता है एक प्रोडक्ट की बजाय दूसरा प्रोडक्ट बाय करना. Buying one thing against the another thing. कैसे? आपको चाहिए कोक एंड पेप्सी, कोक एंड पेप्सी आर द सब्स्टिट्यूट्स. और ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम करता है, ये भी लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करने में हेल्प करता है. दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी है ना, कोई चीज़ सस्ती हो जाती है, हम उस प्रोडक्ट को ज़्यादा बाय करना पसंद करते हैं रादर देन दैट dearer good. ध्यान रखें स्टूडेंट्स, when I am talking about the dearer goods, that means I am talking about the expensive. In economics हम expensive word बहुत जो lavish goods होते हैं ना उनके लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए जब comparison करना होता है cheaper, then the word is dearer, not expensive, right? So substitution effect क्या कहता है मुझे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताता है कि लेट अस से टू कमोडिटीज़ हैं हमारे पास, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई. अब हुआ क्या, दोनों गुड्स एक दूसरे की थी सब्स्टिट्यूट्स. अब बाय चांस जो ये कमोडिटी एक्स था, व्हेन प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी एक्स फॉल्स, प्राइजेस कम हो गए. किसके कम हो गए प्राइजेस? प्राइजेस कम हो गए हमारे एक्स कमोडिटी के. तो एक्स कमोडिटी के प्राइजेस कम होने से फ़र्क क्या पड़ा? नाउ वी कैन बाय मोर ऑफ इट. हम सब्स्टिट्यूट गुड्स को पहले से ज़्यादा बाय कर पाएंगे बिकॉज इट बिकम्स चीपर फॉर यू. एक्स और वाई में से एक्स आपके लिए चीपर हो गया है. अब आप being a rational consumer would like to buy more of x rather than y. आप y के बजाय x को ज़्यादा बाय करना पसंद करेंगे. So that's the reason that we are substituting x is substituted for y. x को y की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा और जैसे जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑब्वियसली द डिमांड ऑफ x विल राइज. x की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है बिकॉज द पीपल हु आर बाइंग y commodity would like to buy more of x commodity because it becomes cheaper to us. वो हमारे लिए काफ़ी चीप हो गई है. दिस इज़ नॉन टू बी द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इसे क्या बोलते हैं? दिस इज़ नॉन टू बी द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द थ्री इफेक्ट्स. One is law of diminishing marginal utility. The second one is the income effect, that is the real income effect, and the third one is the substitution effect. Now the another thing जो हमें यहाँ पर बात करनी है, that is about the size of consumer group. आपको क्या लगता है डिमांड क्यों बढ़ गई? एक ही पर्सन ने ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया क्या? क्या ऐसा हुआ आईफोन सस्ता हो गया, मैंने एक की बजाय दो खरीद लिए? नहीं, मैंने तो 3 ही खरीद लिए. इज़ इट पॉसिबल? नो, ये नहीं होता है. तो क्या होता है एक्चुअली, वेन एवर देयर इज़ अ फॉल इन द प्राइजेज ऑफ द गुड्स, मोर पीपल कैन अफोर्ड इट. जो ये सेल्स लगती हैं, आप क्या बोलेंगे, एंड ऑफ द सीजन सेल लगती है, ब्रांडेड क्लोथ्स पर लगती है, ब्रांडेड आइटम्स पर लगती हैं. वो क्या करती हैं एक्चुअली, वो कंज्यूमर को सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं करती, वो कंज्यूमर को एक चांस प्रोवाइड कर रही होती हैं विद द लेसर प्राइजेस दैट यू कैन बाय इट. सो जो कंज्यूमर पहले उस प्रोडक्ट को नहीं बाय कर पा रहे थे, जो अफोर्डेबल नहीं था उनके लिए, नाउ दे कैन अफोर्ड इट. और जब ज़्यादा कंज्यूमर्स ऐड हो जाएंगे, there is a rise in the demand of that particular thing. So we can say the law of demand is applicable because whenever there is a fall in the price, more consumers can buy that product. The size of the consumer group will rise. ये rise हो जाता है. So this is the size of the consumer group. Now इंटरेस्टिंग सा था ये पॉइंट, है ना. अब लास्ट रह गया है हमारा, दैट इज़ डिफरेंट यूजेस. एक ही प्रोडक्ट के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमारी जर्नल लाइफ में हम यूज़ करते हैं जिनके कई सारे यूजेस हो सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट लाइक मिल्क. हेयर is the example of milk I have taken. So milk has various uses. As you know, milk can be consumed as well
as well as milk can be used to make tea, to make coffee, to make curd, to make butter, to make cheese, and so many things are there. So whenever there is a fall in the prices of such goods, the people are start using them for the another uses as well. Like मिल्क के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, मिल्क 50 रुपीज़ अ लीटर है, तो हम केवल जो नेसेसिटीज़ हैं, लाइक नेसेसिटीज़ लाइक ठीक है ना, हमें पीने के लिए चाहिए, टी के लिए चाहिए, कॉफ़ी के लिए चाहिए, हम केवल जो अपनी ज़रूरी थिंग्स होती हैं, ज़रूरी नेसेसिटीज़ होती हैं, उन्हीं के लिए यूज़ कर रहे हैं. बट जैसे ही हम मिल्क की वैल्यू, मिल्क के प्राइसेस, वैल्यू नहीं बोलना चाहिए, वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट, जैसे ही मिल्क के प्राइसेस कम हो जाते हैं, लेट अस से 35 रुपीज़ पर लीटर हो गया, यू कैन बाय मोर ऑफ इट बिकॉज यू विल स्टार्ट मेकिंग मैनी अनदर थिंग्स विद दैट पर्टिकुलर मिल्क. अभी तक क्या था, चीज़ आप मार्केट से लेके आ रहे थे, कर्ड आप मार्केट से लेके आ रहे थे बिकॉज मिल्क के प्राइसेस हाई थे. अभी क्या हो गया, मिल्क के प्राइसेस जैसे ही डाउन हो गए, आपने वो सभी प्रोडक्ट जो आप मार्केट से खरीद रहे थे, अब आपने अपने घर में बनाने शुरू कर दिए, एंड दैट विल राइज द डिमांड ऑफ मिल्क एज वेल. सो व्हेनेवर देयर इज अ fall in the prices of things, we can start using them in their different uses. और जैसे जैसे different uses में हम उनके यूज़ को बढ़ाएंगे, यूज़ को इंक्रीज़ करेंगे, वी मेक मोर क्वांटिटी डिमांडेड, हम ज़्यादा डिमांड भी तो करेंगे, एंड दैट्स हाउ द लॉ ऑफ डिमांड विल बी एप्लीकेबल. और यही रीज़न रहता है कि लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है हमारा, right? So these are the 5 reasons why the law of demand is applicable. So students, I have discussed about all these things to you, but keep always in your mind, each and every point must be ready for you at least for 3 months. अच्छा रहेगा आपके लिए कि आपको कम से कम इतना तो एक्सप्लेन करना आता हो कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को अच्छे से इलेबरेट कर सकें. ठीक है, सो प्लीज़ पढ़ें, थोड़ा ध्यान से पढ़ें. सो दीज आर द रीजन्स वाई द लॉ ऑफ डिमांड इज़ एप्लीकेबल. क्या पढ़ लिया अभी हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ डिमांड के बारे में? नहीं, पहले हमने डिमांड के बारे में पढ़ा, हमने डिफरेंस किया नीड, वांट एंड डिमांड में क्या डिफरेंस होता है, डिमांड कब डिमांड बनती है. देन आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड के साथ में हमने उसके अजम्पशंस किए हैं और लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकली एज वेल एज टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, that why the law of demand is applicable, or in other words we have discussed why the demand curve is always downward sloping. downward sloping क्यों होता है, ये अभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है. अब मुझे एक ज़रा बात बताएं, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमेशा ऐसा होता है आपकी लाइफ में कि जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं हम कम खरीदना शुरू कर देते हैं? होता है ऐसा? नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में तभी आ रहा होगा जब हमने ये कहा कि हमेशा ऐसा होता है. नो, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस का मतलब कुछ ऐसी भी थिंग्स हैं जिन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता ही नहीं है, जिनके प्राइसेस कम होने पर उनकी डिमांड ज़्यादा नहीं की जाती है, या ऐसा कहें प्राइसेस हाई होने पर ही उनकी डिमांड की जाती है. So let's discuss about the exceptions of the law of demand. क्या exceptions होते हैं law of demand के, इनके बारे में बात करेंगे. exceptions का मतलब समझते हैं? exceptions का मतलब होता है कि हिंदी में वर्ड होता है अपवाद. लाइक जो चीज़ जहाँ पर नहीं पॉसिबल है बाकी सभी जगह पर है, बट फ्यू थिंग्स आर देयर जहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं है. तो ये एक्सेप्शंस हैं. लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है. पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड क्यों एप्लीकेबल होता है, और अब हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पर एप्लीकेबल, या व्हाई इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. क्यों नहीं होता है एप्लीकेबल, कहाँ नहीं होता है एप्लीकेबल, वो रीजंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एक्सेप्शन जो है लॉ ऑफ डिमांड की, दैट इज़ अबाउट आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. Do you know the word articles of distinction?
आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब है दैट मेक अ डिस्टिंक्शन इन आवर लाइफ। दो लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएशन लाने का काम जो करे उन्हें आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन कहते हैं। मैं अभी लास्ट वीक अपने एक रिलेटिव के घर को मैंने विज़िट किया, ठीक है, और मैंने देखी वहाँ पर बहुत फेमस पेंटर की पेंटिंग लगी हुई थी। अब वो जो पेंटिंग लगी हुई थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, राइट। तो वो एक्सपेंसिव थी, इसीलिए मुझे पता लगा कि अब मुझे यही लगा कि प्राइजेज़ इतने महंगे होने के बावजूद इन्होंने अगर ये पेंटिंग खरीदी है, लॉ ऑफ डिमांड कहाँ एप्लीकेबल होता है। वो बहुत रिच लोग तो ऐसा नहीं कह सकती मैं, लेकिन ये भी नहीं है कि वो एक रैशनल ह्यूमन बीइंग नहीं है। रैशनल ह्यूमन बीइंग होते हुए भी अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो डिस्टिंक्शन करता है मेरे और उनके बीच में, जिनको हम आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन कहते हैं। ये वो सभी एक्सपेंसिव और वी कैन से वेरी एक्सपेंसिव गुड्स होती हैं जो मोस्टली लोग अपने लाइफस्टाइल, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हाई शो करने के लिए ही लगाते हैं या हाई शो करने के लिए ही खरीदते हैं। अगर वो पेंटिंग सस्ती हो जाए ना और लाइक मेरे घर में भी आ जाए, वो तो अपनी उठा के रख देंगे अलमारी में, राइट। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन कहा जाता है। इनको पहली बार इनके बारे में डॉक्टर वेबलन ने बताया था, इसीलिए इन्हें वेबलन गुड्स भी कहा जाता है। They are also known to be the Veblen goods. Veblen is the name of an economist who has firstly told about these types of things that law of demand is not applicable on these things. So article of distinction पर ये law applicable नहीं होता है because articles of distinction खरीदी ही इसलिए जाती है because they are high priced goods. प्राइजेस हायर होंगे, पीपल वुड लाइक टू बाय मोर, प्राइजेस कम हो जाएंगे, लोग उन्हें खरीदना कम कर देते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। नाउ द सेकेंड वन, गिफिन गुड्स। ये क्या है भाई, नई चीज़ आ गई हमारे लिए एकदम, और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। गिफिन गुड्स ये क्या होते हैं? गिफिन वर्ड नया है, जैसे वेबलन डिस्टिंक्शन नया था वैसे ही गिफिन भी नया है। गिफिन भी इकोनॉमिस्ट का नाम है, द नेम इज सर रॉबर्ट गिफिन। अब ये सर रॉबर्ट गिफिन थे, इन्होंने बताया था कि एक इस तरह की कमोडिटी होती है। किस तरह की कमोडिटी होती है? इट इज़ द नेसेसरी फूड आइटम। अब आप सोच के देखिए, उस किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए जिसके बिना आपकी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो फर्स्ट नेसेसिटी क्या आती है हमारी लाइफ के लिए? दैट इज़ फूड। वी नीड फूड। और जो लोग डेली वेजर्स हैं, जो लोग केवल इतना ही अर्न कर पाते हैं कि वो अपनी रूटीन की नेसेसिटीज़ पूरा कर पाते हैं, तो अपनी इनकम अर्न करने पर सबसे पहले वो अपनी इनकम का मेजर पार्ट फूड आइटम पर ही स्पेंड कर रहे होते हैं। अब आप सोच के देखिए, वो जो फूड आइटम था अगर वो एक्सपेंसिव हो जाए, आई एम रिपीटिंग, अगर जो पुअर पीपल है जो केवल अपना फूड ही अर्न कर पा रहे हैं, अगर फूड आइटम महंगा हो जाए, इफ़ दे आर रेडी टू रिड्यूस द क्वांटिटी, मैं एक्सेप्शंस की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो कभी भी अगर ऐसे गुड्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, उनकी अगर प्राइसेस बढ़ भी जाएं, तब भी हम उनकी डिमांड को कम नहीं करते हैं। कम नहीं करने का मतलब है हम एटलीस्ट उस लेवल पर तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी उतना ही खरीद पा रहे हैं जितना हमारे जीने के लिए, जितना हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी था। तो जितना हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी था अगर मैं उतना ही खरीद पा रही हूँ, तो गिफिन गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज प्राइजेस ज़्यादा होने पर हम इनकी डिमांड बहुत रिड्यूस नहीं करते हैं, एज वेल एज प्राइस कम होने पर हम उन्हें ज़्यादा खरीदना भी पसंद नहीं करेंगे। हम चाहेंगे उनकी जगह क्या खरीद लें, हम कुछ अच्छा खरीदना पसंद करेंगे, है ना ये बात। कि अगर मेरे पास मेरी रियल इनकम, याद होगा आपको वर्ड रियल इनकम के बारे में, पीछे हमने डिस्कस किया था, अगर मुझे रियल इनकम बढ़ गई तो व्हाई शुड आई स्पेंड ऑन द सेम थिंग, आई कैन स्पेंड समथिंग न्यू थिंग,
कोई भी नई चीज़ खरीदूंगी मैं, वही क्यों खरीदने लगी? तो इसीलिए गिवन गुड्स पर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, देन आता है एक्सेप्शंस ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। याद कीजिए, हमने जब अजम्पशन लिया था तो एक अजम्पशन ये भी लिया था, फ्यूचर प्राइजेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक इशू रहता है कि समटाइम्स अगर फ्यूचर में प्राइजेस चेंज होने वाले हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, अगर मुझे पता लग जाए कि 1-2 दिन में पेट्रोल के प्राइजेस कम होने वाले हैं, तो मैं आज कम प्राइजेस पर भी पेट्रोल को कम खरीदना पसंद करूंगी। द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर गुड विल डिक्लाइन इवन एट डिक्लाइंड प्राइजेस। लॉ ऑफ डिमांड कहाँ एप्लीकेबल हुआ? वो तो कहता था अगर प्राइजेस आज डाउन है मुझे डिमांड ज़्यादा कर देनी चाहिए, लेकिन मुझे ये पता है कि कल प्राइजेस और डाउन होने वाले हैं, इसीलिए मैं आज डिमांड को अपने स्टेबल रखूँगी या मैं डिमांड कम करूँगी। आई विल नॉट राइज माई डिमांड, दैट्स वाई इन दिस केस लॉ ऑफ डिमांड इज ऑल्सो अगेन नॉट एप्लीकेबल। प्राइस चेंज अगर फ्यूचर में हो तब भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आफ्टर दैट इग्नोरेंस, एज मोस्ट ऑफ अस आर, जैसा हम अक्सर करते हैं, जिन शॉप से हमें खरीदने की आदत है, जिन शॉपिंग मॉल से हमें खरीदने की आदत है, वी नेवर गो विद द डिफरेंट शॉप्स। हम नहीं जाते हैं ना जिनके लिए हमें ठीक है मैं तो यहीं से बाय करती हूँ हमेशा से, तो मैं तो यहीं से बाय करूँगी। दिस शोज़ माई इग्नोरेंस। आई नेवर नो कि सेम प्रोडक्ट शायद बिल्कुल साथ वाला शॉपकीपर या बिल्कुल साथ वाला शॉपिंग मॉल कम प्राइजेस पर ऑफर कर रहा था, बट बिकॉज ऑफ माई इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ द lack of knowledge about the product, the different products available in the market, the different prices at which the product is available into the market, me become ignorant of that thing and I would like or I would continue to buy more thing at higher prices. This is an issue और यहाँ पर भी मेरा law of demand actually apply नहीं कर रहा है। So ये भी एक एक्सेप्शन ही रहती है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है। एंड द लास्ट वन, दिस इज़ द इमरजेंसीज। एज यू नो, शायद मेरे ख्याल से इमरजेंसीज के बारे में तो सबसे पहले आपके माइंड में आया होगा कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि प्राइजेस अगर बढ़ गए तो हम उन चीज़ों को कम खरीदना शुरू कर देंगे। मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी था खरीदना, मैंने तो उसको ब्लैक में भी खरीदा, मैंने तो छोड़ा ही नहीं। तो दिस इज़ कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसीज। जब भी कभी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, यू आर लाइकली टू बाय द थिंग एट हायर प्राइजेस इवन। एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बिना आपका गुजारा पॉसिबल नहीं है। लाइक एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में मुझे ध्यान आ रहा है कि अगर आपके घर में डोमेस्टिक फ्यूल जो आप एलपीजी गैस सिलेंडर यूज़ करते हो ख़त्म हो गया, तो क्या आप वेट करेंगे प्राइसेस डाउन होने की? नहीं ना, चाहे प्राइजेस अप ही क्यों ना हो, यू हैव टू बाय एट हायर प्राइजेस इवन। इसी तरह से मेडिसिन के केस में कह सकते हैं, इसी तरह से कुछ ऐसी नेसेसिटीज़ होती हैं हमारी लाइफ में या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। लाइक मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और रास्ते में मुझे पेन खरीदना है, वो पेन अब चाहे कितने का भी मिल क्यों नहीं रहा हो, नॉर्मल रूटीन प्राइजेस से भी ज़्यादा का क्यों नहीं मिल रहा हो, आई हैव टू बाय दैट थिंग। तो लॉ ऑफ डिमांड कहाँ एप्लीकेबल हुआ? वहाँ। So in these extreme cases law of demand applicable ही नहीं होता है। These are the exceptions to the law of demand। ये वो things हैं, ये वो points हैं जो हमें बताते हैं law of demand apply तो करता है, फंडामेंटल लॉ भी है, हर कंज्यूमर पर होता भी है, हमारी जर्नल लाइफ में भी हम इसको देखते हैं, बट मैनी अ टाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्लाई इट एज इट इज़। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी कमोडिटीज़, कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जिन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। सो दिस इज़ अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों ने एंजॉय किया होगा स्टडीज़ को, लॉ ऑफ डिमांड आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स में आता है ये कंज्यूमर बिहेवियर के। सो प्लीज़ ध्यान से कीजिए, स्टडी कीजिए एंड यू कैन सी अभी हमने एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड तक पूरा कंप्लीट पैकेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर डिस्कस कर लिया है।
So all of you, thank you for your concern and thank you for your watching the video. Goodbye.